Hello everyone, I welcome you all in the fourth lecture on topic syllogism, where the agenda would be to discuss two things today. First, how to check a possibility type conclusion, and second, we'll discuss one important case of either or. Let us start the session. Look at the question first. This question contains four statements followed by some conclusions, and based on the answers of my conclusion, I have to mark one of the five options as my answer. So the first step would be to create a Venn diagram by using the statements. Read the first statement. All cats are rats. All cats are rats. It means all the cats should be contained within rats. While doing so, I'm going to make an optimized diagram. So read the next statement. Some jets are mets. Since jets and mets are not mentioned yet in my diagram, so what I can do, I can skip this information for now. But when the right time will come, I'll come back to this information. Look at the next one now. No rats are jets. Means rats and jets are disjoint. So I'm going to create a circle for jet, and then rat and jet should be disjoint in nature. Read the fourth one. All mats are fixed. Again, अगर मैं मैट्स और फिक्स को देखता हूं तो इन दोनों में से कोई भी एंटिटी यहाँ पे अभी मैंने नहीं बनाई है. And therefore, I'll go back to the skipped information. The second one. Some jets are mets. तो मुझे jets और mets के बीच में क्या रिलेशन दिखाना है? Some means a partial overlap has to be shown. And now come back to the fourth one. All mats are fixed. सारे के सारे mats को क्या दिखाना है? Fixed दिखाना है. So you need to be a little careful here. While showing all mats as fixed, make a diagram in this manner. You know the reason. And this diagram is called as minimum overlap diagram. Once the diagram is created, it is very easy to check any given conclusions. हमने अभी तक समझा है कि कैसे affirmative conclusions को check करते हैं और कैसे negative conclusion को check किया जाता है. If you read the first two conclusions, the first two conclusions are of type no, negative. And I already know how to deal with negative conclusion type no. अगर मैं last के दो conclusions को देखूंगा, they are new here. Although they are new, but I already know how to deal with a possibility type conclusion, isn't it? हमने जब नेगेटिव कंक्लूजन को चेक करना सीखा था तो हमने वही सीख लिया कि पॉसिबिलिटी टाइप कंक्लूजन को कैसे चेक किया जाता है. सो व्हेन इट कम्स टू हाउ टू डील विद अ पॉसिबिलिटी टाइप कंक्लूजन, there is nothing new to learn here. So whatever we have learned in type 2, how to check a negative conclusion, the same thing needs to be used here. Let's check these conclusions one by one. Look at the first conclusion. First conclusion negative है, और क्योंकि ये नेगेटिव है, माय फर्स्ट स्टेप वुड बी टू राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नो का कॉम्प्लीमेंट होता है सम. आई होप यू कैन रिकॉल. तो सम जेट्स, आई एम जस्ट राइटिंग जे, कैन बी कैट्स. क्या कुछ जेट्स को कैट्स दिखाया जा सकता है? क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी की ओर इंडिकेट कर रहा हूं, so I have to think about a diagram, a possible diagram, where some jets can be shown as cats without contradicting any of these statements. Why? Because statements are my rules. मैं statements को contradict नहीं कर सकता. क्या ऐसा किया जा सकता है? After thinking for a while, you would say, sir, it is not possible. You know why it is not possible? क्योंकि जैसे ही मैं jets को cats के पास ले जाने की कोशिश करूंगा, उसको R कभी enter करने ही नहीं देगा. The overlapping is not possible between cats and jets. You know why? Because all the cats are contained within rats. So whatever is the relation between rats and jets, the same would be the relation between cats and jets. तो क्या मैं कुछ jets को cats दिखा सकता हूं? The answer is no, क्योंकि ऐसा करना possible नहीं है. Therefore, the first conclusion follows. Okay, let's check the second conclusion now. No cats are mets. Write down the complement first. Some cats can be mets. क्या मैं कुछ cats को mets दिखा सकता हूं? This time it is possible. You know why? Because if I look at this part of met, this is completely independent. इसको तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूं ना. तो मैं क्या करूंगा? I'll just bring the mets वाला circle here. और क्या मैं कुछ cats को mets दिखा पाया? You would say yes sir, I can see. It's possible to show some cats as mets. तुम बोलोगे सर इस इंफॉर्मेशन का क्या? All mets are fixed. I can draw this ना. I can draw this figure here. अच्छा सर, व्हाट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन? सम मेट्स आर जेट्स. आई कैन ड्रॉ दिस एज वेल. अब कुछ लोग बोलेंगे सर बट आपने तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो कर दिया. तो तुमको समझना पड़ेगा पॉसिबल डायग्राम में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाना अलाउड है. उन्होंने सम बोला है, तुम ऑल दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि जितना स्टेटमेंट में बोला है ना, एटलीस्ट उतना तो शो होना चाहिए. कम से कम वो शो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी शो कर सकता हूं. अब ये करते वक्त, ये जब मैंने डायग्राम बनाया, जस्ट मेक श्योर कहीं मैंने कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर दिया. और कोई स्टेटमेंट क्या,
हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हम बस नेगेटिव स्टेटमेंट को चेक करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? थर्ड वन, नो रेड्स आर जेट्स। ऐसा करते हुए कहीं मैंने रेड्स एंड जेट्स का ओवरलैप तो नहीं कराया? यू वुड से नो सर। अभी रेड्स और जेट्स के बीच में मैंने कोई ओवरलैप नहीं कराया। एंड देयरफॉर व्हाटएवर पॉसिबल डायग्राम आई हैव क्रिएटेड, इट इज करेक्ट, इट इज वैलिड। और क्योंकि ये वैलिड है, इट मींस दिस पॉसिबिलिटी फॉलोज। मैं कुछ कैट्स को मेट्स दिखा सकता हूं, देयरफॉर द कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। And now it's time to check the third conclusion. But before I check the third conclusion, I need to go back to my original diagram. Read the third conclusion now. Some cats being fixed is a possibility. तो जो possibility टाइप का conclusion होगा ना, उसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये possibility मुझसे पूछ रहा है। क्या कुछ cats को fix दिखाया जा सकता है? Is it possible? तुम बोलोगे अभी मैंने देखा था, हाँ it is possible. कुछ cats को fix कैसे दिखाऊंगा? तुम बोलोगे इस तरीके से। अच्छा सर, इस इंफॉर्मेशन का क्या? That all mates are fixed. Okay, let me show it here. All mates are fixed. अच्छा सर, what about this information? Some mets should be jets. Okay, let me show it in this way. And while doing so, just make sure कि मैं थर्ड इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रडिक्ट ना करूं। क्या मैंने रेड्स और जेट्स के बीच में कहीं ओवरलैप तो नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। सो इज इट पॉसिबल टू शो सम कैट्स एज फिक्स? यू वुड से सर व्हाई नॉट, इट्स पॉसिबल। तो तुमको वहां पे डायग्राम बनाना नहीं है, यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज, राइट? और क्योंकि ये पॉसिबल है विदाउट डूइंग एनी कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। Look at the fourth conclusion now. All rats being met is a possibility. But before I check this, let me go back to my diagram. Okay, so what was the conclusion? All rats being met is a possibility. क्या सारे के सारे rats को mets दिखाया जा सकता है? Just think about it. तुम बोलोगे सर बिल्कुल दिखाया जा सकता है। कैसे? मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं सारे के सारे mets को, मैं mets के सर्कल को सेंड कर रहा हूं। मैं सारे के सारे rats को mets दिखा दूंगा। मैंने क्या किया? मैंने सारे के सारे रेट्स को मेट्स दिखा दिया। तुम बोलोगे सर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया। अभी भी आर एंड जे मींस रेट्स एंड जेट्स के बीच में ओवरलैपिंग मैंने नहीं किया। And therefore, this fourth conclusion also follows. Since I'm not contradicting anything while creating this possibility, it means the possibility can be made here. So what is going to be the answer of my question? You would say, sir, first, third, and fourth. So whichever option says first, third, and fourth follow, that option would be my answer. So mark option C. Okay, let's look at the next question. Again, I'm provided with few statements followed by some conclusions, and then I have to mark one of the five options as my answer. First step is to make a Venn diagram using the four statements. First statement क्या है देखो? First statement is some books are papers. So how would you draw this? Very easy. Some books are papers. Read the second one. Some papers are roads. Some papers are roads. Some roads are lanes. And then the final one. Some lanes are streets. Once my minimum overlap diagram is created, now it is time to check the conclusions. Let us start with the first conclusion. What is the first conclusion? Some streets are not roads. Since it's a negative conclusion, I have to challenge it. I'm going to challenge it by writing its complementary. What is the complement of some streets are not roads? You would say, sir, complement would be all streets can be roads. Now you have to just think, is it possible to show all S as R? All streets as roads? Is it possible? You would say, yes, sir, it's possible. And how would you show this? You will just extend the boundaries of R. What I'm trying to tell you, if you just extend the boundaries of R, all the S can be contained within R. So is it possible to contain all the S inside R? The answer is yes. And while doing so, have I contradicted any of these statements? The answer is no. Why I'm so sure about it? Because if you read these statements, there is no statement here which is negative. और अगर मेरे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कहां से? आई होप यू कैन रिकॉल। और क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल है, द कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट कंक्लूजन is does not follow. First conclusion does not follow. Likewise, let us check the second conclusion. But before that, let's go back to our original diagram. All lanes being books is a possibility. It's a possibility type conclusion. And in case of possibility type conclusion, again, I need to manipulate my diagram. I'll think about a possibility where all lanes can be shown as books. क्या सारे के सारे lanes को books दिखाया जा सकता है? You would say, sir, everything is possible here. And you know why I'm saying everything is possible? Because all these statements, if you read these statements carefully, you would realize
each and every statement is positive here. So there is no chance that after creating a possible diagram there will be any contradiction. और क्योंकि contradiction होगा ही नहीं, तो मेरा ये जो possibility है definitely ये बन सकता है, और क्योंकि ये बन जाएगा therefore second conclusion does follow. Read the third one. All street being paper is a possibility. ये तो मेरे शॉर्टकट बन गया ना. यहाँ पे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ही नहीं. तो क्या मैं सारे के सारे स्ट्रीट्स को पेपर्स दिखा सकता हूँ? ये देयर कैन बी अ डायग्राम. आई कैन क्रिएट अ डायग्राम जहां पे सारे के सारे स्ट्रीट्स क्या बन जाएंगे? पेपर्स बन जाएंगे, और कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही नहीं. एंड देयरफॉर द थर्ड कंक्लूजन आल्सो फॉलोज. So what is the learning for us? The learning is if each and every statement is positive, तो उस केस में पॉसिबिलिटी कंक्लूजन हमेशा फॉलो करता है. एक और चीज समझना, जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, तुम एक चीज और रियलाइज करोगे कि नेगेटिव कंक्लूजन का आंसर हमेशा डज नॉट फॉलो आएगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ रीड द नेक्स्ट कंक्लूजन. सम रोड्स आर डेफिनेटली बुक्स. यू वुड से सर इट्स एन अफर्मेटिव कंक्लूजन. ये कैसा कंक्लूजन है? अफर्मेटिव. और अफर्मेटिव कंक्लूजन के केस में आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग. In fact, I'll simply look at my minimum overlap diagram. I try to check whether this thing is visible here or not. क्या यहाँ पे मुझे कुछ roads, books दिख रहे हैं? You would say no, sir, it's not visible. Since this thing is not visible here, therefore it will not follow. Now, some of you might be thinking that, sir, what if I get a conclusion? Let's call it fifth conclusion. जहां पे कुछ ये लिखा गया है, some roads can be books. तो मैंने फोर्थ कंक्लूजन को, जो कि एक अफर्मेटिव कंक्लूजन था, मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें? एक पॉसिबिलिटी टाइप कंक्लूजन में. तो क्या इस बार इसका आंसर डज नॉट फॉलो होगा? नहीं. क्या कुछ रोड्स को बुक्स दिखाया जा सकता है? तुम बोलोगे हाँ सर दिखाया जा सकता है, और इस बार इस कंक्लूजन का आंसर क्या हो जाता? दैट इट फॉलोज. But since I'm just provided with four conclusions, so let us find one of the option which says second and third. Second and third, option E. The correct answer of my question is option E. So I hope through this question, now you are comfortable with possibility type conclusion. And now it's time to discuss one final concept of this particular topic, that is the case of either or. Now to understand the case of either or, what I have done, I have picked an example here. So I have provided you with two statements followed by two conclusions. So the first thing which I want you to do is, I want you to create a Venn diagram first using the two statements, and then you need to check these two conclusions individually. So let me draw the Venn diagram first. All flowers are trees. All flowers are trees. Some trees are horses. A partial overlap has to be shown. So this diagram is the minimum overlap diagram. Now against this minimum overlap diagram, I have to check the given conclusion. Read the first conclusion. First conclusion, some horses are flowers. ये कैसा conclusion है? You would say, sir, it's an affirmative conclusion. Affirmative conclusion को check करना सबसे easy है. मुझे diagram में कोई भी manipulation करने की जरूरत नहीं है. Simply check क्या मुझे कुछ horses, flowers दिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इस diagram में मुझे कुछ horses, flowers नहीं दिख रहे हैं. Therefore, first conclusion, answer of first conclusion does not follow. First conclusion का answer क्या आया? Does not follow आया. Likewise, check the second conclusion now. No horse is flower. No horse is flower. It's a negative conclusion, isn't it? ये एक negative conclusion है. और याद है ना, negative conclusion में हम क्या करते हैं? हम पहले complement लिखते हैं. What is the complement of no A or B? तुम बोलोगे some. So the complement of no horse is flower would be written as some horses can be flowers. क्या कुछ हॉर्सेस को फ्लावर्स दिखाया जा सकता है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल दिखाया जा सकता है ना. मैं हॉर्स और फ्लावर का पार्शियल ओवरलैप करा सकता हूं, और ऐसा करते वक्त मैं कोई भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि ये करना पॉसिबल है, इसीलिए मेरा सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. तो जब मैं इन दो कंक्लूजन्स को इंडिविजुअली चेक करता हूं, तो मेरा इंडिविजुअली दोनों का आंसर क्या आता है? डज नॉट फॉलो. तो एक स्टूडेंट को लग सकता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बोलेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड. बट इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन का आंसर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड नहीं है. तो तुमको क्या समझना है? अगर तुम इन दोनों कंक्लूजन्स को पेयर में देखते हो, तो तुम्हें समझ में आएगा, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? तुमको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पढ़े थे. सम ए आर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नो ए आर बी. रिमेंबर,
and all A are B का complement is some A are not B. So these are the two complementary pairs which are available in syllogism. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की खास बात क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की खास बात ये होती है कि इनमें से एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है. Likewise, if you look at the other pair, one member is positive and the other member is negative. हमने एक चीज और समझी थी कि इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का आंसर सेम टाइम पे गलत भी नहीं हो सकता और सेम टाइम पे ये दोनों सही भी नहीं हो सकते. मतलब सेम टाइम पे इन दोनों का आंसर डज नॉट फॉलो भी नहीं आ सकता और सेम टाइम पे इन दोनों कंक्लूजन का आंसर ट्रू भी नहीं आ सकता. अगर तुम अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दो कंक्लूजन का आंसर क्या आ रहा है? डज नॉट फॉलो. याद है ना मैंने क्या बताया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा तो एक कंक्लूजन हमेशा सही होगा और दूसरा गलत होगा. क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, कौन सा सही है और कौन सा गलत, इसीलिए ये कैसा पेयर बना? ईदर और का पेयर बना कि दोनों में से एक तो सही होगा ही होगा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज एंड दिस इज वेयर यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल. अब ईदर और लगाने के लिए ना कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मुझको चेक करने हैं. क्या सिम्टम्स हैं? फर्स्ट सिम्टम, जो मेरा पेयर होगा जिसमें मैं ईदर और लगाऊंगा इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्लीज रिमेंबर मेरे पास दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं. सेकंड मुझे क्या देखना है? जो एंटिटीज है ना दे शुड बी सेम. नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर तुम फर्स्ट कंक्लूजन रीड करोगे तो यहां पे हम हॉर्सेस एंड फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं. दो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? हॉर्सेस एंड फ्लावर्स. एंड सेकंड कंक्लूजन में भी हम हॉर्सेस एंड फ्लावर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों कंक्लूजन में जो एंटिटीज हैं वो सेम यूज की गई हैं? यस. तुम बोलोगे सर अगर ऑर्डर चेंज हो गया, मींस फ्लावर पहले लिख दिया और हॉर्स बाद में लिख दिया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. एंटिटी सेम होनी चाहिए, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हम ओवरलुक करते हैं, दोनों कंक्लूजन का आंसर जब मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा तो वो डज नॉट फॉलो आ रहा होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वन हैज टू वेरीफाई. क्या दोनों कंक्लूजन्स का आंसर डज नॉट फॉलो है? तो मुझे समझ में आया कि हाँ दोनों कंक्लूजन का आंसर डज नॉट फॉलो है. इसीलिए ये एक ईदर और का पेयर बना. क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइम पे गलत हो ही नहीं सकते. तुम अगर थोड़ा लॉजिकली समझोगे ना, पहला कंक्लूजन कह रहा है सम हॉर्सेस आर फ्लावर्स. अगर तुम बोलते हो कि सर ये कंक्लूजन ना गलत है, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हॉर्सेस एंड फ्लावर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. क्योंकि जब मैं सम हॉर्सेस आर फ्लावर्स चेक कर रहा हूं तो मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद एक एलिमेंट तो कॉमन होगा. और जब मैं बोल रहा हूं कि वो गलत है, इसका मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी कॉमन नहीं है. और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो? और अगर तुम बोलते हो दैट सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, सेकंड कंक्लूजन में क्या लिखा है? नो हॉर्स इज फ्लावर. नो हॉर्स इज फ्लावर का मतलब क्या है? कि हॉर्स एंड फ्लावर इज अ डिसजॉइंट सेट. और तुम बोलो कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है, उनके बीच में कुछ कॉमन है. अगर उनके बीच में कुछ कॉमन है तो हाउ कुड यू से दैट फर्स्ट कंक्लूजन इज इनकरेक्ट? तो दोनों कंक्लूजन साथ में गलत नहीं हो सकते एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ईदर और. तो जिस तरीके से सम एंड नो ईदर और बनाते हैं उसी तरीके से ऑल एंड सम नॉट भी बनाते हैं. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस सम ऑफ यू वुड से सर एग्जामिनेशन के टाइम पे मुझे कब समझ में आएगा कि ईदर और लगाना है कि नहीं लगाना है? ऐसा हो सकता है ना कि जब मैं कंक्लूजन को इंडिविजुअली चेक कर रहा हूं तो मेरे दिमाग से स्किप कर जाए. So to give you a better idea, to give you a hands-on experience, let me present a past year question. Past year question which had appeared in one of the placement exams. Read the statement first. All baskets are marbles. Okay, let's do one thing. Let's draw the Venn diagram side by side. All baskets are marbles. So all baskets should be contained within marbles. Some marbles are stick. No stick is garden. So this is how the minimum overlap diagram would be created. Now read the conclusions. First conclusion, some gardens are basket. Some gardens are basket. It's an affirmative conclusion. तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं. क्या मुझे कुछ gardens basket दिख रहे हैं? तुम बोलोगे सर नहीं दिख रहे हैं. तो first conclusion does not follow. Read the second conclusion. Some sticks are baskets. क्या मुझे कुछ sticks basket दिख रहे हैं? Can I see some sticks as basket? The answer is again no. Since it's not visible, therefore it does not follow.
Look at the third conclusion now. No garden is basket. Now, when you read no garden is basket, you would say, sir, it's a negative conclusion. और negative conclusion के केस में what we do, we write down the complement of it. Complement क्या होगा? तुम बोलोगे सर क्योंकि no है तो no का complement is some. Some garden can be basket. तो मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढूंगा जहां पे कुछ गार्डन को बास्केट दिखाया जा सकता है। तो क्या हम कुछ गार्डन्स को बास्केट दिखा सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। यू नो व्हाट आई डू, आई जस्ट ब्रिंग द गार्डन सर्कल हियर इन दिस मैनर एंड नाउ आई कैन सी ओके some gardens can be seen as basket. And while doing so, have I contradicted any information? In fact, the only statement which I'm going to check is the negative one. कहीं ऐसा करते वक्त मैंने स्टिक और गार्डन के बीच में ओवरलैप तो नहीं दिखाया? तुम बोलोगे नहीं सर अभी भी कोई ओवरलैपिंग हमने नहीं दिखाई। सो वट एवर आई क्रिएटेड इट इज करेक्ट। और क्योंकि कुछ गार्डन्स को बास्केट दिखाया जा सकता है तो मैं कैसे बोल सकता हूं दैट नो गार्डन इज बास्केट इज ट्रू, देयरफॉर दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। तो तुम में से बहुत सारे लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पे क्या लिखा होगा, नन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। बट व्हेन यू लुक एट दी ऑप्शंस यू वुड रियलाइज कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे नन फॉलोज लिखा है। और यहीं पे ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही मुझको ईदर दिखता है ना, आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर। ईदर आया, अब मैं जल्दी से देखूंगा ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बन रहा है। तुम बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो मुझे दो दो दिख रहे हैं, मुझे फर्स्ट एंड थर्ड भी दिख रहा है, मुझे सेकंड एंड थर्ड भी दिख रहा है। लेकिन तुमको सिम्टम्स याद होने चाहिए। खाली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं, एंटिटीज भी सेम होना चाहिए। यानी अगर गार्डन एंड बास्केट के बारे में यहां पे बात हो रही है तो दूसरे वाले पेयर में जो करस्पॉन्डिंग पेयर है उसमें भी गार्डन एंड बास्केट के बारे में ही बात होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन एंड बास्केट के बारे में बात हो रही है। तो मुझे फर्स्ट एंड थर्ड ये दो कंक्लूजन कैसे दिखे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखा। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो है। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या इनकी एंटिटी सेम है? हाँ, इनकी एंटिटी सेम है। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या इन दोनों कंक्लूजन का आंसर इंडिविजुअली डज नॉट फॉलो आ रहा है? हाँ, और इसीलिए ये मेरा एक ईदर और का पेयर है। Therefore, I'm going to mark an option my answer which says either first or third follows. Either first or third follows is option C. Option C is the correct answer. So I hope with the help of this example, you were able to understand how to identify an either or pair in the quotients of syllogism. So with this, it's time to say goodbye. Thank you for listening. Have a great day.